as the armies on both sides prepare for the crossfire. Her Excellency Madam Rahila Khan makes her way towards line of control between Pakistan and India. Like any other citizen, Madam Rahila Khan has also been a victim of false promises, eventually giving up many official and political platforms that did not fulfill her agendas for human rights and welfare. Her non-profit NGO, the Inner Voice Welfare Trust, strives for women empowerment, children education, water and medical aid for LOC victims. She is the president for Asia at the Overseas Pakistan Solidarity, and earlier in 2018, Her Excellency Madam Rahila Khan was announced as Ambassador at Large for the International Human Rights Commission Federation. اور میری زندگی کا مقصد انسانیت کی خدمت اور اپنے کشمیریوں کی خدمت ہے. پاپا کہہ رہے تھے مت ڈرا کرو، کچھ نہیں ہوتا، ہم جائیں گے، ہم کشمیر لے کر رہیں گے. بہت شکریہ بیٹم، آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ اتنے دور سے وہاں سے چل کے اتنے مشکل حالات میں فائرنگ زون میں آپ آئی ہیں. بالکل آپ لوگ بھی یہاں رہتے ہیں تو اس لیے مجھے فائرنگ سے ڈر اس لیے نہیں لگتا کہ آپ لوگ بھی تو رہتے ہیں اور آپ لوگ رہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو آئے دن یہاں شادتیں ہوتی ہیں، سب ہوتا ہے. ہم یہاں اس علاقے کے ہم بارڈر پہ کھڑے ہیں چونکہ تھوڑے سے دور پہ، تو آپ ہمیں بتائیں گے اس علاقے میں کیا پرابلم ہے. کہ پانی جو ہماری جو سورسز ہیں وہ بالکل LOC کے اوپر ہیں، زیرو لائن پہ، تو اب وہاں پہ آئے روز کراس فائرنگ ہوتی ہے، لوگ نہیں جا سکتے. جو مل رہا ہے اس میں آپ ہیپاٹائٹس B اور C، تو اس طرح کی ڈیزیزز جو ہے کہ وہ لوگوں کے اندر آ رہی ہیں. اور یہاں پہ فائرنگ آئے روز معمول بنا ہوا ہے فائرنگ کا. یہاں پہ لوگ زخمی ہوتے ہیں، بعض شہید ہوتے ہیں، لیکن جو زخمی ہوتے ہیں ان کو بر وقت ہم ان کو ریسکیو نہیں کر سکتے. ان کو ہاسپٹلس ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ ان کو ہم ہاسپٹل تک بچائیں. کوئی ایمبولینس نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز وہاں پہ. فائرنگ ہے اور فائرنگ رینج میں ہے، بعض اوقات بند ہو جاتی ہے. شہید ہوئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ وہ ان کو بر وقت ایمبولینس نہیں مل سکی ہے، ان کو ہم ہاسپٹل تک نہیں پہنچا سکتے. کہ حکومت یہاں کچھ نہیں کر رہی، نئی حکومت جو بنی ہوئی ہے. حکومت بالکل اس حوالے سے صحت ہے، تعلیم ہے، یا جو بنیادی جو مسائل ہیں اس پہ کوئی ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ صرف الیکشن کے دنوں میں چند سیاستدان نظر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. 5 سال ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. وہ آگ میرے سینے میں دہک رہی ہے. کاش وہ ٹائم آئے کہ سب سے پہلی گولی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو کے آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اپنے کشمیریوں کے لیے کھاؤں. میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. میں ایک سوشل ورکر ہوں. میں انسانیت کے لیے کام کرتی ہوں، ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہوں. بچپن سے 14 سال کی عمر میں تھی تو میں نے سوشل ورک شروع کیا تھا. ہمارے کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے اور جو کشمیری جہاں ہیں وہ بھی بے حال ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بے شرمی سے نکل کے یہاں پہ کچھ کیجیے. جی ان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل سطح پر ہم جو ہم سے ہو سکتا ہے اپنا کردار ادا کریں. جی ہم LOC پہ رہتے ہیں اور ہماری تعلیم بہت زیادہ گولہ باری ہوتی ہے، ہماری تعلیم بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. ہم لوگ آتے ہیں اسکول میں، فائرنگ ہوتی ہے، ہفتہ چھٹیاں رہتی ہیں اسکول میں. اور دوسرا نمبر کہ ہمارے پانی بالکل ان کے قریب ہے اور پانی جب موٹر خراب ہو جاتی ہے، پانی کا مسئلہ اتنا مسئلہ کہ ہر قدم میں مسئلے اور خدا رہا ہمارے ان مسائل کو حل کیا جائے. آپ کی بڑی مہربانی. جب ہوتی ہے فائرنگ تو کوئی یہاں پہ ایمبولینس نہیں ہوتی ہے، کوئی فرسٹ ایڈ نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے شہادتیں ہوتی ہیں. وہ عذاب میں مبتلا ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، ہمارے پانی بند ہیں، اور بالخصوص جس سیکٹر میں آپ کھڑی ہیں ساری کی ساری جو چراگاہ ہے کتنا دور بارڈر یہاں سے تقریباً آپ اگر زمینی فاصلہ جائیں تو تقریباً 1 کلومیٹر، ہارڈلی آدھا کلومیٹر بنے ہوئے. یہ سامنے جو سارا ایریا ہے یہ آگے نہیں جانے دیتے. آپ اگر جو پلین ایریا یہ بھی آدھا یہاں تک آ چکی ہے کہ ہمارے پینے کے پانی بند کیے جا چکے ہیں. ہمارے جتنے بھی چشمے تھے وہ اسی علاقے میں تھے، ہماری چراگاہ تھی، مال مویشی، اور پھر جو دریا کا بیلٹ تھا، ریور بیلٹ تھا، وہاں پر لوگ وہاں سے مچھلیاں پکڑتے تھے، ریت نکالتے تھے، بجری نکالتے تھے. باقی جو ان کا روزگار کا ذریعہ تھا وہ ہماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لوکل انڈسٹری تھی. تو انڈین افواج کی گولہ باری کی وجہ سے ہماری وہ انڈسٹری بند ہو چکی ہے، ہمارے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. مچھلیوں کے جو لوگ کام کرتے تھے وہ بھی ہو گیا. جو دیٹ واز سورس آف انکم فار دیٹ پیپل. وہ دودھ بیچتے تھے، مکھن بناتے تھے، گھی بناتے تھے، اور پھر اس سے وہ اپنا نظام زندگی چلاتے تھے. اب جب وہ چراگاہ بند ہوئی تو لوگوں کے پاس کچھ
باقی ذریعہ بچا نہیں. تو اب وہ انہوں نے مویشی اونے پونے داموں فروخت کرنا شروع کر دیا, نیلام کر دیا آپ یوں کہہ لیں. اب وہ لوگ بھی اب فاقہ کشی کا تو بھائی آپ لوگ یہ چیزیں آپ نے حکومت کو بتانے کی کوشش کی؟ ہمارے ڈی سی کے ساتھ ایس پی جو پہنچا اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی, ہم نے ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں, اپنے حلقے کے جو ایم ایل اے ہے اسے بتایا, لیکن کسی کے کانوں پر جون تک نہیں رہی. ہم ان کو یہ ساری چیزیں ہم کو بتائی کہ بھئی ہمارے مسائل, لوگوں کی شہادت پہ بھی نہیں آتے کہ یہاں پہ فائرنگ, شہادت نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ نہیں آتے. ان کی صرف اتنی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ کنٹرول لائن کے اوپر میڈم شہید ہوتے ہیں, گولہ باری سے شہید ہوتے ہیں, اور جو معاوضہ دیا جاتا ہے شہداء کے ورثاء کو وہ اور پھر اس میں سے ایک خاصا حصہ ہے جو ان کا جو مافیا بیٹھا ہوا ہے, جو ان کا محکمہ مال ہے, اس میں وہ ہڑپ کر جاتے ہیں. ویمن رائٹس کا جو آپ کو ایمبیسڈر ایٹ لارج بنایا گیا ہے یونائٹڈ نیشن میں, آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں آپ سے میڈم کہ آپ اس علاقے کے مسائل کو اجاگر کریں گی, اس میں کہاں تک کمی اس کا آتی بھی ہے. میرا پہلا پروجیکٹ یہی ہے کہ میں پانی آپ کے جو فلٹرز لگاؤں گی انشاءاللہ, اور آپ کو پانی کی فلٹرز تو بعد کا پانی ہے ہی نہیں, پانی ہی نہیں ہے, جو پانی ہے وہ ان کی رینج میں آتے ہیں. اچھا, ہم نے وہاں موٹر ہم پانی کہاں سے لا سکتے ہیں؟ 70 سے 80 پانی نیچے والے بیلٹ میں جو بور ہوگا, بالکل ریور بیلٹ میں یہاں پہ 70 سے 80 مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ 20 یا 30 40 فٹ تک پانی یہاں پہ آ جاتا ہے. اچھا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اس کے نیچے زمین میں وہ دریا والا پتھر ہے, یہ اس طرح کا اس سائز کا پتھر ہے. اب یہ جو چھوٹی بورنگ مشینیں ہیں نا وہ اس کو توڑ نہیں سکتی ہیں. اس سے اوپر جو بیلٹ ہے اس سے اوپر وہ پتھر نہیں ہے, وہاں پہ بورنگ ہو جاتی ہے. جو اوپلا پانی تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اوپر بورنگ کریں اور پائپ لگا کے نیچے لیں, وہ ہو سکتا ہے, وہ سب سے ایزی ہے. پھر دوسرا یہاں پہ وہ مشینیں دوسری ہیں, وہ ایک ڈرل ہے کہ وہ جس طرح وہ اس طرح پھرتی ہے نا, ان سے ایزیلی یہ ہو جاتا ہے. وہ تھوڑی کاسٹ ہے, وہ لوگ یہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے. بالکل ہم لائیں گے جی آپ کے لیے, وہ مشین ہم آپ کے لیے مشینیں لائیں گے, پانی کے لیے کریں گے. سب سے پہلا میری سے بین الاقوامی طور پر یہ اٹھائی جائے کہ بچوں, بوڑھوں, عورتوں پر فائر نہیں, بین الاقوامی طور پر بھی قانون ہے. بالکل یہ کر رہے ہیں اور یہ کریں گے انشاءاللہ. مزید یونائٹڈ نیشن سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ فائرنگ بند ہونا چاہیے, فائرنگ بند ہونا چاہیے, کیونکہ یہ فائرنگ جو ہے بوڑھے, بچے, جوان, لوگوں پہ جو کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے اور گھروں میں وہ رہ رہے ہیں, ان گھروں میں متبادل کوئی جگہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی جگہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں میڈم اس کے لیے کہ سٹاپ کلنگز آف انوسنٹ کشمیریز آن بوتھ سائڈز آف LOC. جب جو دشمن فائر کرتا ہے, روڈ بلاک کر دیتا ہے, تو یہاں پہلے ہی سڑک تنگ ہے, گاڑی پاس ہی نہیں ہو سکتی ہے. پانی کے مسائل آپ نے سنے ہیں کہ پانی ہے ہی نہیں یہاں, تو بور وغیرہ اس طرح کی مشینیں کو لگ دیں اور بور کر کے پانی نکال دیں تاکہ ہمارے گھروں میں لوگوں کو پانی محسوس ہو. انشاءاللہ. 26 سال ہو گئے, بہت مشکل ہے. میں بیمار ہو گیا, ایسے شکار کھانے کوئی نہیں مل رہا جناب, میں پانی ہے تو بس میل ہے کیا ہے. اچھا, ایک میل دے فاصلے تے پانی آئی تھے. ہسپتال وغیرہ کوئی ہے تواڈے کول ایتھے قریب؟ کوئی ہسپتال نہیں ایتھے, بالکل ہسپتال ہے ہی نہیں سرے تو. تواڈا کوئی مریض بیمار ہو جانا نے تے کتھے جاندے ہو؟ امبور جانے. امبور جانے ہو ایتھوں؟ امبور کتنا دور ہے ایتھوں؟ 4-5 کلو سے. ادھر بھی ایسا نہ کوئی رہائش ہے, نہ کوئی کھانا پینا ایسا صحیح ہے, نہ سے مکان صحیح ہے, نہ سے کوئی دوائی نہیں ملتی, نہ ادھر کوئی ٹرانسپیرنسی ہے, نہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ, نہ ادھر کوئی سکول بھی نہیں ہے, اور کوئی ذریعہ ایسا کوئی تھا جیلن ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. سکول بھی مل سکتا ہے, اسپتال بھی ملنی چاہیے. نہیں ہو رہا ہے. ہسپتال میں ڈاکٹر وغیرہ ہیں آپ کو چیک کرنے والے, یا وہ بھی نہیں ہے؟ کوئی نہیں. تو لوگ تواڈی مدد کر دے نے ایتھے نے؟ کوئی نہیں کرتا, بس اللہ ہی بہتر زندگی گزارن واسطے بس بہت چیزیں لگتی, لیکن ہے ہی نہیں کچھ بھی. جو دہشت گردی آج اس سے زیادہ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. میں سوچتا ہوں کہ ہندوستان نے, وہ ظالم اور سفاق لوگوں نے پیلٹ گن کا استعمال کیا, وہاں بچوں کی انہوں نے روشنیاں چھین لی, عورتوں کی عصمتوں کو تار کیا انہوں نے. حالیہ جموں میں ایک آسفا والا واقعہ ہوا ہے, وہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کی اجتماعی زیادتی کی اس کے ساتھ. تو میں سوچتا ہوں کہ ظلم ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں ضرور آزادی ہے, یہاں مسلمان حکومت ہے, یہ بات بالکل بجا ہے, لیکن جو لوگ وہاں سے اس وقت ہجرت کر کے یہاں آئے اور یہاں ابھی ان کی رہائش ہے, یہ انتہائی مشکل اور دردناک رہائش ہے ان کی,
क्योंकि यहाँ की हुकूमत ने हमें 6% कोटा दिया, जो माजरीन मुकीम पाकिस्तान से उनसे 6% उनका 25% कोटा था, जो काट के 6% यहाँ के आलिया यानी 89 या 90 के रिफ्यूजीज़ को दिया गया, और जिस पे ज़रा भी अमल दरामद इस वक्त तक ज़रा भी अमल दरामद नहीं हो सका। सवाए महाजर जो जितने भी तकरीबन लोग हैं जब वहाँ से आए, इनका तारीख के साथ रिश्ते होते होते भी इनके बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मुलाजमत नहीं है, कोई भी इस तरह का यानी स्कोप नहीं है कि जिसमें ये कोई अपना रोज़गार चला सके। कर रहा है जिसको महकमा बालियात कहते हैं। महकमा बालियात जब यहाँ कोई वफद आता है उसके सामने एक बड़ा बोर्ड अवेज़ा करते हैं। बोर्ड अवेज़ा करने के बाद वो कहते हैं कि हमने इनको पानी, बिजली, तालीम और उसके बाद रिहाइश, ये सब चीज़ें हमने इनको फ्री दी हुई हैं। और मैं कहूँगा कि देखें, फायरिंग यहाँ से नुकसान, अगर फायरिंग होगी या वहाँ से नुकसान, मार तो मुसलमान ही रहा है, मैं कहूँगा कि कश्मीरी ही मर रहा है। नहीं देखें, हम एक निचले दर्जे की ज़िंदगी गुजारें, यानी कि एक सतह होती है, हमारी कोई सतह नहीं है कि जिसके ऊपर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तक मैं कागज़ों की बात करूँगा कि अगर मैं सरकार के कागज़ों में देखूँ तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, लेकिन जहाँ तक मैं देखूँ किसको कि स्कूल, आपने स्कूल विज़िट किया, स्कूल आपने देखा, ये स्कूल हम अल्लाह के फजल करम से अप्रैल 2006 से ये काम कर रहे हैं तालीम का। अप्रैल 2006 से लिए मैं ह्यूमन राइट्स से लड़ूंगी, मैं वहाँ से मदद लूंगी, लेकिन आप लोग भी मेरा साथ देंगे। मैं आपको सिर्फ ये कहने आई हूँ कि ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा है कि मैं किसी के लिए उस वक्त तक कुछ नहीं करूँगा जब कोई अपने लिए कुछ नहीं करना चाहेगा। तो हमें खुद से अपने लिए करना है। हमें उन कायर, उन नालायक, उन एहसान फरामोश लोगों पे जो हुकूमत पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे डेरे जमा के, उन पे भरोसा नहीं करना। हमें खुद से अपने काम करना। इस टीम को, इस स्कूल को ऑर्गेनाइज करने वालों को सैल्यूट करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। मेरी तरफ से ये 50,000 आपके स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, और इंशाल्लाह ये 1 लाख रुपया जो मैंने ऐलान किया वो किसी भी ज़रूरत पे या जब आपको ज़रूरत हो या जैसे भी साल के अंदर आप मुझसे ले सकते हैं, और आप किसी भी प्रॉब्लम को मेरे शेयर कर सके। 82 ममालिक की एम्बेसडर एट लार्ज हूँ। इंशाल्लाह दुनिया के 82 ममालिक में मैं इस स्कूल का नाम लेके जाऊँगी, और ऐसे जितने भी इदारे होंगे उनका नाम लेके जाऊँगी। मैं हमेशा आपके साथ थी, हमेशा आपके साथ रहूँगी। आपकी बहन। अल्लाह हैं। हमारी औरतें जो हैं तो घरों में बैठी हैं, बेरोज़गार ही हैं, तो इसलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें एक सिलाई सेंटर होना चाहिए, और भी कोई मसाइल, बस ये अगर कोई इनको काम मिल जाए तो इनकी काफ़ी सहूलत हो सकती है, अपने बच्चों को अपने घरों में सहूलत दे सकती है। और जो सदीक भाई का स्कूल है तो इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि इनको फर्नीचर की भी ज़रूरत है, और शेल्टर भी रह रहे हैं इसके। इस वक्त आप भी खुद भी देख लें कि बारिश होती है तो अंदर ही जाती है, यानी कि बारिश होती है अंदर ही जाती है। आप मुझे ये बताओ, हॉस्पिटल भी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आपका कोई मरीज बीमार हो जाता है? मुसलमान ही मार रहे हैं, जिधर भी है मुसलमान ही मार रहे हैं। तो उन बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, तो हमारे बच्चे जो बच्चे बचाए हैं तो हमें क्या जिंदगी का फायदा। यहाँ पे हमने अपने सेल्फ हेल्प के तहत एक तालीम के इस मैदान को फ्लोरिश करना चाहते हैं। अपने बच्चों को हम बेसिकली यहाँ पे एजुकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि हम जब कश्मीर से यहाँ माइग्रेट होके आए तो हमारे बच्चों के पास, हमारे पास न कोई माल था, न कोई जायदाद थी, न कोई हम ज़मीनें ला सके, तो हम बिल्कुल खाली हाथ आए हैं। तो पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रहा है कि उसको हम वेलकम करते हैं, या यूनाइटेड नेशन जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम वेलकम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जहाँ तक हमारे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो बेसिक नीड्स हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक समझा है कि इंसान की जो बुनियादी नीड है वो एजुकेशन है। क्योंकि एजुकेशन, जब इंसान के पास अच्छी एजुकेशन होगी तो वो अच्छी एजुकेशन से उसको पता चल जाएगा कि इस दुनिया की जो ग्लोबल विलेज के अंदर जो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, इसके अंदर इंसान की ज़रूरियात क्या है उसको खुद पता चलेगा। हमारी बेसिक नीड यहाँ पे दैट इज़ द एजुकेशन। नीड्स की ज़रूरत है। फाइनेंशियली हमारे जो बच्चे हैं, या हम जो कश्मीर कम्युनिटी यहाँ पे फाइनेंशियली हम बहुत वीक हैं, तो इस अगर हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इन फाइनेंशियल क्राइसिस में हम अपनी एजुकेशन को बेहतर कभी नहीं बना सकते, क्वालिटी एजुकेशन कभी नहीं ले सकते। दूसरी इसी से रिलेटेड एक इशू है, वो ये है कि हम एक ऐसे हम कह सकते हैं स्लम एरियाज में रहते हैं, ठीक है, इतनी एक कंजेस्टेड आबादी में रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें जो ज़मीन अलाट कर रखी है
लेकिन इस पे भी कभी न कभी एतराज़ बहरहाल उठता ही जाता है। हम खुल कर यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे हमें एक अच्छी बिल्डिंग मिल सकती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होगा, हमें काफ़ी मिकदार में यहाँ पे फर्नीचर होगा, बाकी नीड्स होंगी, तो हम इंशाल्लाह मेहनती लोग हैं, हम हार्ड वर्कर्स हैं, हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। पानी का हमें शदीद मसला है यहाँ पे, एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है, चूँकि सारा हमारे पास माजर कैंपों में सारा प्राइवेट सेक्टर है। वाटर सप्लाई का पानी हमारे पास तो सिरे से किसी भी माजर कैंप में नहीं है। तो हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो जो चश्मे यहाँ छोटे मोटे थे उनसे मोटर्स लगा के पानी चढ़ाते हैं। वो पानी नाकाबिल इस्तेमाल है। लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि वो पानी ठीक नहीं है, मुझे रिसर्च है, वो वही इस्तेमाल कर रहे हैं, मजबूरी है। हॉस्पिटल्स हमारे जो मुजफ्फराबाद सिटी के हैं वो तो हैं, लेकिन माजिर कैंपों में इस तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी मैसर नहीं है। हमारे अपने कैंपों में फर्स्ट एड सेंटर्स उस तरह नहीं है। उस पर चूँकि हम अपनी मदद आपके तहत जो कोशिशें कर रहे हैं, लिटरेसी रेट बेहतर है लेकिन क्वालिटी मौजूद नहीं है जी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, खुसूसन पैलेट गन्स का इस्तेमाल, नौजवानों का कत्ले आम, ख़वातीन की असमत दरी, और ये जो गुज़श्ता वाक़या हुआ है आसफा का जो गैंग रैप हुआ और उसके बाद उसका बेहमाना कत्ल हुआ, अगर उस पर हम समझते हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ नहीं किया तो हम अक़वाम मुत्तहिदा से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए कि मगरब के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर अगर उनके कुत्ते के साथ प्रॉब्लम हो जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उस पर हरकत में आ जाती है। तो क्या कश्मीर के अंदर होने वाले मज़ालिम जो हिंदुस्तान गुज़श्ता 70 सालों से कर रहा है, क्या उसका एहसास अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं होना चाहिए? हम ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है मसला कश्मीर के हवाले से और कश्मीर के अंदर जारी मज़ालिम के हवाले से, वो इंतहाई मद में नज़र नहीं आ रहा। उसी का नतीजा ये जो LOC पे जो फायर है ये उसी का नतीजा है। लेकिन इसमें हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा हटदर्मी पे है, वो पाकिस्तान की हदूद में फायर करता है, आए रोज़ बार्डर्स पे फायर होते हैं जिससे पाकिस्तान की सिविल आबादी मुतासर हो रही है। निस्बतन पाकिस्तान की फायरिंग से मकबूजा कश्मीर के अंदर आबादी ज़्यादा मुतासर नहीं हो रही, लेकिन जो यहाँ की आबादी मुतासर, इस LOC जो इसका ये जो तनाज़ा है ना, ये सिर्फ कश्मीर के मसले की वजह से है, कश्मीर की तहरीक की वजह से। हम ये चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो फिलफौर इस मसले में कूदे और मज़ीद इंसानी जानों का ज़िया बचाए और मज़ीद कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म को रोकने की कोशिश करे। और हम यकीन से ये बात कह सकते हैं, अगर अक़वाम मुत्तहिदा इसमें दर्द दिल के साथ किरदार अदा करने की कोशिश करे, मसला कश्मीर हल होना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। हम इस वजह से परेशान हैं कि हम ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद क्यों रुका हुआ है। हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए, उससे ये जो रीजन में ये जो प्रॉब्लम चल रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये ख़त्म हो सकता है। हमारे से कोई इमदाद प्रोवाइड करे। हम ज़रूर ये चाहते हैं कि महाजरीन को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए वोकेशनल सेंटर्स यहाँ पे होने चाहिए। हमारे पास एक प्राइवेट है जिसमें 20 से 25 ख़वातीन सीख रही हैं, वो भी सेल्फ पे ही है सारा। तो हम ये चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस तरह के इक़दामात करने चाहिए ताकि हम लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकें। चूँकि इस वक्त जिस तरह की इंसानी ज़िंदगी हमारी गुजरनी चाहिए भरपूर तरीके से नहीं गुजर रही। हम हर शोबे ज़िंदगी में मुश्किलात का शिकार हैं माली वसाइल ना होने की वजह से। तो अक़वाम मुत्तहिदा का हक़ बनता है कि वो जिस तरह पूरी दुनिया में वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही है और इंसानों की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, उसको कश्मीरियों के लिए, खुसूसन आज़ाद कश्मीर के महाजरीन के लिए उनको करनी चाहिए। क्या है, क्या नहीं, क्या यूटिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है, हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, लेकिन हम इन बच्चों का मुस्तकबिल देखते हुए इनकी तालीम को आगे प्रॉपर करने के लिए हम इनको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। हमें स्कूल के लिए प्रॉपर बिल्डिंग चाहिए, प्रॉपर फर्नीचर चाहिए, और एक स्कूल में जो एक स्टैंडर्ड स्कूल होता है वहाँ पर जो तमाम सहूलियात होती हैं, हमें भी अगर वो सहूलियात मिल जाएँ तो इन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से तालीम दी जा सकती है। जब यहाँ पे सहूलियात होंगी, प्रॉपर बिल्डिंग होगी, प्रॉपर फर्नीचर होगा, प्रॉपर सिस्टम होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे तादाद खुद ही इंक्रीज हो जाएगी। हमें प्रॉपर यहाँ पे नीचे जब बारिश होती है तो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ के रास्ते ख़राब हैं। फिर यहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, नीचे आप देख रहे हैं मट्टी है, इसमें जब कीचड़ वगैरह होता है बच्चों का यूनिफॉर्म ख़राब हो जाता है, बच्चे नहीं आ सकते। जब प्रॉपर यहाँ पे कोई वुमन वोकेशनल सेंटर नहीं है जहाँ पे ख़वातीन जा सकें और अपना प्रॉपर काम कर सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी औरतें हैं जो सिलाई कढ़ाई का काम जाती हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे वोकेशनल सेंटर बनाया जाए ख़वातीन के लिए, जहाँ पे वो अपने जो टैलेंट है वो वहाँ पे ज़्यादा निखार सकें और अपना काम कर सकें। प्रॉपर बिल्डिंग की शेप की जाए, इन शेल्टर्स की जगह अगर पूरे सही तरीके से इसको बनाया जाए तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। हमें स्कूल के अंदर बिल्डिंग का मसला है, यानी कि इसलिए लोग यहाँ पर बच्चों को नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत कम है। जैसे कि यहाँ बेंच हैं जो
टूटे हुए तब भी बच्चे बैठते हैं, आधों को कम है, लेकिन वहाँ बेंच वगैरह सब। तो 8 तक के बच्चों की फ़ी हमारे पास 200 ही है, 200 लेते हैं हम, इसी में एडजस्ट करते हैं, इसी में हम अपने 2 साल का यानी जो हम किराया देते हैं इस बिल्डिंग का वो भी निकालते हैं और टीचर्स की पे वगैरह भी निकालते हैं। और टीचर्स की पे बहुत कम है जिस पे टीचर्स एतराज़ भी करती हैं। मैं खुद बजाते खुद प्रिंसिपल होकर मैं 5000 रुपया पे ले रही हूँ। देनी चाहिए हमारी फैसिलिटीज़ में ये चीज़ होनी चाहिए, वॉशरूम बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा मेन 168 के करीब थी स्ट्रेंथ जिसमें बच्चे एडजस्ट हो जाते थे, लेकिन अब हमारे पास 200 बच्चे, जो हमारे पास फर्नीचर बहुत कम है जिसकी वजह से जो बच्चे हमारे वो इन फर्नीचर पर पूरे नहीं आ रहे हैं और कुछ बच्चे हमारे नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। आप तो बहुत अच्छा स्कूल होगा। ये इनका जी स्कूल है सिद्दीक़ाई का, और इसको बिल्डिंग की ज़रूरत है तामीर करवाने की, इंशाल्लाह जो कि हम करवाएंगे। लोग यहाँ 2-4 हैं, यहाँ पर ख़वातीन में के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है जिसकी वजह से वो इनका टैलेंट जो है वो ज़ायल हो रहा है, और इस वजह से कि मतलब कि यहाँ पर लोगों को जो सिलाई कढ़ाई के काम आते हैं औरतों को, तो इनका ये है कि इनके लिए ऐसा है कि इनके लिए इनको एक अदारे की ज़रूरत है जो घरों में बैठी के लिए ऐसा हो कि ऐसे अदारे इनके लिए बनाए जाएँ ताकि ये अपना टैलेंट दिखा सकें। नहीं है यहाँ पर भी उनको कुछ चीज़ों की कमी है, जैसे कि स्कूल और साथ में हॉस्पिटल्स की कमी है, और फिर वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर जगह नहीं है। मसले के पानी नहीं है, पानी नहीं, बस आपने तो होता बस नल के शल के लाए देनो, बस कुरे मिलता है कुरे नहीं मिलता है ना जी। यानी कि अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी सी है, वैसे मामूली डिस्पेंसरी। अच्छा, यानी कि अस्पताल आपके पास नहीं है मुयस्सर। अच्छा, आप मुझे देखें सर, पानी का भी डिफिकल्टी है। नंबर पहली बात ये है कि हमें इधर जब से आए हैं हमें सरकारी स्कूल नहीं मिला है। स्कूल है सर सिलाई कढ़ाई का या इस तरह का कोई चीज़ है? इस कैंप में नहीं है, इस कैंप में नहीं है। अच्छा, यानी कि आपके कैंप में ये चीज़ें भी नहीं हैं, यानी कि आपको जो ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलतें होती हैं वो मुयस्सर नहीं है यहाँ पे? नहीं है, बस इतना ही है जो कुछ महकमा बालियात दे रहा है हमें, कोई गुजारा लो, उससे आपका अच्छा गुजारा हो जाता है या बहुत मुश्किल से गुजारा होता है? बहुत मुश्किल से होता है हमें, बहुत मुश्किल। इस तरफ भी लोग मर रहे हैं, नुकसान तो दोनों तरफ हो रहा है। तरफ का है मगर मुसलमान ही मरते हैं ना। तो आप नहीं समझते कि ये बातचीत से, अगर बातचीत नहीं जंग पर अगर तुल जाएंगे तो फिर तो बहुत सत्यानाश हो जाएगी। अल्लाह के लिए उस अपने मुल्क में ये लें अपना लेटर पैड लिखकर कि ये जिम्मेदारी है बरतानिया की, कश्मीर आज़ाद करानी, कश्मीर बातचीत से आज़ाद करानी, बगैर बरतानिया से बगैर और कोई नहीं। यानी कि इनका यहाँ पे बरतानिया से मुराद ये है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा से ये गुजारिश कर रहा था कि ये मेरे को बहुत बुरा मसला पेश आया इंडियन फौज का, वो मार रही थी, पिटाई कर रही थी कि आप बताएं आप मिलिटेंट है। मैंने बोला मैं मिलिटेंट नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं इससे 10,000 जिम्मेदार जनाब, मेरा माल मवेशी सब कुछ उधर ही रह गया, कोई चीज़ मैंने नहीं ले आई, हाल ये एगरे कपड़े लेकर भागा मैं। और तशद्दुद की इंतहा बहुत तशद्दुद मेरे साथ जो हुई है देखें आप। अब मेरी टांग काटे गई, मेरे को रिमांड हुआ 4 दिन, फिर मैं भागते गिर के पाकिस्तान की साइड में आ गया। तो आप यहाँ पे पाकिस्तान 1990 1500 या 2000 में हमारा कोई इधर नहीं है गुजारा। 1500-2000 आप जेब में डालोगे आपका महीना निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं निकलता। आपके पास अस्पताल नहीं है, आपके पास अस्पताल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कब्रिस्तान का तो नाम निशान इस कैंप में नहीं है। पानी डब्बा लेकर जाता हूँ 4 मील दूर, इस हालत में एक पाँव में। मीर साहब, आपके वहाँ पे इंडियन आर्मी ने ये टांग काटी थी आपकी? हाँ जी, इंडियन आर्मी मार ये देखे मेरा पाँव, देखे मैं किस हाल पर हूँ, नहीं की जा रही नहीं मैया हो रही ना। मेरे को 6 माह मैंने गुजारे अस्पताल के अंदर, इधर अस्पताल भी नहीं है। एक कंपाउंडर है बेचारा, जब कभी ड्यूटी देता है कभी होता नहीं है, अगर वो लिख कर देगा उसके पास दवा ही नहीं, वो कहाँ से देगा, फिर भी वो दवा मुल्क की खरीदनी है। हम जब इधर कुछ 90 में हिजरत करके आए थे यहाँ, उस वक्त हमारी जो एक फैमिली थी वो आज 5 फैमिलियाँ हैं। तो जगह हमारे पास जो मुख्तस हुई थी ना, वही थोड़ी सी जगह मिली थी, उसमें जो बच्चे उस वक्त पैदा हुए थे वो आज एक फैमिली के 4-4, 5-5 बच्चे जवान हैं जो मैरिड हैं। उस हवाले से हमारी जगह के मसाइल हैं। हमारा कोई डिस्पेंसरी नहीं है माजर कैंप में, बिल्कुल हम जो है ना अर्जा जाते हैं और भाग जाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट कोई सहूलत मौजूद नहीं, एम्बुलेंस की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। पानी के हवाले से अभी तक कोई इकदाम नहीं हुए हैं। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें कुछ पाइप मिले हैं वो हमने नाले का पानी लाया है जो हमने वाशरूम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और पीने का पानी हम दूर दराज से चश्मों
पीछे जो है ना कंधों पे उठा के लाते हैं, कोई टेस्ट नहीं हुआ है पानी का। अगर यहाँ पर बोरिंग करवाई जाए तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ से पानी निकलने के आसार हैं? बिल्कुल पानी के आसार हैं। यहाँ पर हमने एक बोरिंग करवाई है कि वो अभी तक हमने उसको रन रखा हुआ है, वो चल रही है एक जगह पे, लेकिन दैट इज अनसफिशिएंट। जब बीमार हो जाती है कोई खवातीन हमारी बीमार होती हैं, हमारे पास एम्बुलेंस वगैरह कोई नहीं होती है, फिर हमने प्राइवेट गाड़ी करके या बाग पहुँचना पड़ता है या अर्जा जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल यहाँ कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। डिस्पेंसरी के लिए बार बार गवर्नमेंट ने यहाँ हमें जो है ना यकीन दहानी करवाई है, लेकिन अभी तक कोई डिस्पेंसरी ऐसी नहीं है। अच्छा, आप क्या लेकिन जो हम इस वक्त चाहते हैं, सबसे पहले जो हमारा साफ पानी पीने का, साफ पानी का जो मसला है वो हल हो जाए। हमारा जो जगह का मसला है कि अगर कहीं साइड पे हमें जो आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में बहुत सारी जगह खाली पड़ी हैं, कहीं हमें जगह दी जाए जहाँ हमें, इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है कि एक दो कमरों में हम 4 5 फैमिलियाँ रह रहे हैं, एक कमरे में हम उसी में पकाते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में सोते हैं। तो इसलिए हमारी जगह की सबसे बड़ा मसला जो हमारा वो जगह का कंजेशन बहुत हुई है। जगह यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम नहीं है, और पीने का जो पानी है चश्मे का, वो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो है वो नाले से लाती हैं, वो सिस्टम नहीं है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर हमारे कैंप में जो 350 फैमिली, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ से बाग में जाना पड़ता है, यहाँ से जो तकरीबन 10 किलोमीटर है वहाँ जाना पड़ता है डिस्पेंसरी की, और ये मतलब ये चीज़ कोई हमें सहूलियत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, वुमेन्स एम्पावरमेंट के हवाले से तो हमारी जदोजहद है इस हवाले से कि हम अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा यही कहा कि औरतों की, जब आपकी पॉपुलेशन 53% है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और इसका मतलब ये हुआ कि 47% मर्द हैं, तो जब तक वो एक हाथ नहीं बटाएंगे, औरतें बिलखुसूस इस सारे निज़ाम के अंदर नहीं आएंगी, उनको जो है वो हुकूक नहीं दिए जाएंगे, और बिलखुसूस वो बाहर निकल कर अपने हक़ के लिए और हाथ नहीं बटाएंगे तो रियासत की ना तो तरक्की मुमकिन है, ना इसकी आज़ादी मुमकिन है, और ना ही हम जो है वो कोई बेहतर तौर पे आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए औरतों को बिलखुसूस मर्दों के शाना बशाना चाहिए। ये जो आपकी लोकल दस्तकारी है इसको भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और आप इसकी वजह से आप बहुत बेहतर तौर पे ट्रेड कर सकते हैं, वो अपने रिसोर्सेज खुद पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से ना वो किसी की मोहताज रहेंगी, ना उन्हें घर वालों के ऊपर बर्डन होगा। उसके बाद ये THQ हुआ, THQ होने के बावजूद वहाँ पे 18 का स्टाफ है, यानी चौकीदार चपरासी वगैरह लगा के 18 का स्टाफ है। हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है 92, यानी असामियाँ यहाँ पे होनी चाहिए 92 होनी चाहिए, हमारी 72 पोस्टें मजीद दी जाएँ। यहाँ पे इतनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी है, इतना कुछ कि इवन आपको अभी भी यहाँ पे जाएँ आपको सिरिंज तक नहीं मिलेगी, यानी है तो THQ लेकिन सिरिंज नहीं मिलेगी। जहाँ तक बात है स्कूलों की, तो गवर्नमेंट स्कूल का तो अल्लाह ही हफ़ज़ है, उस लिहाज से अगर देखा जाए एजुकेशन, जिस तरह की एजुकेशन का होना चाहिए वो पॉलिसी नहीं बन रही है। ये जो लिटरेसी रेट तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, यानी आपका 90% लिटरेसी रेट है ये इस लोकेलिटी का, या आज़ाद कश्मीर का कह दे तो वो आपका 80% तक अब चला गया है, लेकिन उसके बावजूद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ। सही प्रैक्टिकल वर्क है नहीं, आप तमाम लैब्स जाके चेक करें, आप जाके उनके जो वो लाइब्रेरीज है वो जाके चेक करें, लाइब्रेरी में कोई बच्चा बैठता ही नहीं, ना कोई तरगीब दी जाती है, सिर्फ ये पैसे लेने के लिए एक पोस्ट अनाउंस की जाती है लाइब्रेरियन की। और इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो हमारे बच्चे जो FSC और BSc वगैरह इस तरह से करते तो प्रैक्टिकल है, ताकि इसको जो है वो मसला कश्मीर को आगे लेके जाया जाए, ना कि इसे जो है वो बून ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बना के रख दिया जाए। इस लिहाज से तो हम यही चाहते हैं कि 1948 की रेजोल्यूशन आए और यूनाइटेड नेशन अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा करे। अभी उसके पास टाइम है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह से कत्लो गारत जारी है, भारत ने जिस तरह से वहाँ पे निज़ाम राइज कर रखा है, उसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए था, क्योंकि कश्मीरी तो हर सूरत में शहीद हो रहे हैं, सारा बार्डर जाता है, डेली हम 2-3 लाशें उठाते हैं, तो ये कश्मीरियों की लाशें हैं, और बिलखुसूस ये इन दोनों के ऊपर हम ये मौक़िफ़ रखते हैं, कश्मीरी अब इस हवाले से ये मौक़िफ़ रखते हैं कि जिस तरह से आप बड़े पुरअमन तौर पे ये वाघा बार्डर के ऊपर एक दूसरे को सलामियाँ और मिठाइयाँ देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत जो है, यहाँ पे अगर सलामियाँ मिठाइयाँ नहीं भी देते तो कम अज़ कम आप यहाँ पे इसको पूरा मन रहने दें। So the question here is, why can't we have peace on the Kashmir borders, just like we maintain peace at the Wagah border?